संसार में सबसे अच्छी, बड़ी और महत्वपूर्ण बात मानव भावना प्यार है। प्यार के बिना मनुष्य का जीवन नीरस ही नहीं बल्कि व्यर्थ है। हमें ये प्यार कहां से मिलेगा? ये प्यार कहां से शुरू होता है? प्यार क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर तथा समाधान पवित्र शास्त्र में है। पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर प्यार है। जो प्यार परमेश्वर हमसे करता है वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मानव रूप में भेजा, इसलिए कि पाप द्वारा हमारा नाश न हो बल्कि દાસના ઘેરમાં છે આનંદનો પ્રસંગ આવ્યા છે એના છે સઘે ગ્રંથથી જોડાવાના માટે આપણે સર્વો અહીંયાથી પ્રભુજી અમે આશીર્વાદ અમે આપીને અમે વિચારીને કહીએ છીએ કે પ્રભુ અત્યારે મુસાફરીમાં યાત્રામાં અમારી સાથે રહે છે। હે પિતા પરમેશ્વર, અત્યારે આ સર્વો અમે આના માટે અમે સૌ અત્યારે પ્રભુજી યાત્રામાં જોડાનાર છે ત્યારે બધાને સંભાળે છે। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरे वचनों की खुशबू से महकेगा सब घर-बार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान। जीवन भर हम बने रहेंगे एक तन एक जान। हाँ, दुख सुख में भी बनी रहेगी चेहरों पर मुस्कान, चेहरों पर मुस्कान। एक दूसरे पर करना जैसे यीशु पर विश्वास। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। एक दूजे की इज्जत करनी यीशु का फरमान। यीशु ने जो बरकत दी है रखना उसका मान। पहले जो अलग अलग थे अब जुड़े दिलों के तार। तेरी रहमत से अब जुड़
प्यार तुझसे सदर होंगे साथ, ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। हो रखूंगा मैं प्यार तुझसे सदर होगा साथ, ना होंगे फिर जुदा हम जो भी हो हालात। उसके वचनों पे चलना ना करेंगे हम इनकार। तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार, तेरी रहमत से अब जुड़ गए दो दिल दो परिवार। તારા દાસને તમે અગવાઈ કરજો। ઉત્પત્તિ 1:26 બાઇબલ કહેશે, અને દેવે કહ્યું કે આપણે પોતાના સ્વરૂપ તથા પ્રતિમા પ્રમાણે માણસને બનાવીએ, અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પર તથા ગ્રામ્ય પશુ ભરપૂર કરો અને તેને વશ કરો, અને સમુદ્રના માછલા પર તથા આકાશના પક્ષીઓ પર તથા પૃથ્વી પર પેટે જનાર સઘળા પ્રાણીઓ પર તેઓ અમલ ચલાવે। પવિત્ર આત્મા તારા હાથોમાં સભાએ છે, તમે દોરો અને તમે જ ચલાવો। અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ યેસુ મસીહના નામમાં પ્રાર્થના માંગુ છું, આમેન। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। આજુબાજુ ગામમાંથી આવેલ સરપંચીઓ, જુદા જુદા ગામમાંથી આવેલ આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ બહેનો અને નાના બાળકો, આપ સર્વને આ બ્રિજલ કુમારી અને એલિસ કુમારના સગે પ્રસંગે આપ સર્વને હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। એલિસ કુમાર પસંદ છે ને? હા, બરોબર। એલિસ, હા। તો આજે લખાણ અને સગાઈ એલા રે વિચારમાં તું રાજી ખુશી હતી ને? હા। કોઈના તાપ દબાણ તો નહીં ને? ના, બરોબર। એક મોટા કામ લઈને ગોઠવો, પ્રભુની સેવા કહો હોય એલા સેવામાં બી તું સહકાર દે ને? હા, સારી વાત છે। તે જ રીતના એલિસ કુમાર તું બ્રિજલ કુમારી પસંદ છે ને? हाँ पसंद है। ગમે ને? हाँ गमे है। તો આજે સગાઈ લખાણ અને સગાઈ વિચારમાં તું રાજી હતો ને? राजी था કોઈના તાપ દબાણ नहीं। તે જ રીતના ઓવડી પુહીએ આયા બહાર પૂછી લઉં, સંગીતાબેન અને યાકુબભાઈ તમે પુહીએ આજે લખાણ સગાઈ અને આવનાર દેહમાં લગન હવે ચામે એલિસ કુમાર હવે ચામે તું રાજી હતા ને? હા, મેં બોલ જા। હા। તે જ રીતના સીતાબેન અને નાનુભાઈ તમે પહા લખાણ સગાઈ અને આવનાર દેહમાં લગન બ્રિજલ કુમારી રહે એટલે તમે કહો ઓવલી બની એ ચામે તું રાજી હતા ને? હા, સરસ। એ બેની પરિવારે મંજૂરી સરસ, એક સારી તાળી પાડી લાવો બધે। સરસ, બહુ દે। 22/12/2023 વાર શુક્રવારના રોજ સગાઈ તથા લગ્ન અંગેનો કરાર કરવામાં આવે છે, જે નીચે મુજબ છે। કન્યાના માતા પિતાનું નામ સંગીતાબેન યાકુબભાઈ ગામિત, પિતાનું નામ યાકુબ કુમાર ચીમનભાઈ ગામિત, કન્યાનું નામ બ્રિજલ કુમારી યાકુબભાઈ ગામિત, સરનામું મુકમ કપણવણ પોસ્ટ બાલપુર, તાલુકો વ્યારા, જિલ્લો તાપી। વરના માતાનું નામ સીતાબેન નાનુભાઈ ગામિત, પિતાનું નામ નાનુભાઈ ઠાકોરભાઈ ગામિત, વરનું નામ એલિસ કુમાર નાનુભાઈ ગામિત, સરનામ મુકમ પોસ્ટ કરંજવેલ, તાલુકો વ્યારા, જિલ્લો તાપી। રીત રસમ સમાજના રીત રિવાજ મુજબ આજ રોજ બંને ગામના આગેવાનો તેમજ બંને પક્ષના માતા પિતા તથા વડીલોની હાજરીમાં સગાઈ લગ્ન અંગેનો કરાર કરવામાં આવે છે, જેમાં બંને પક્ષના આગેવાનો તેમજ વર કન્યાને સામસામે બેસાડી એકબીજાને પૂછપરછ કરી બંને જણાએ વર કન્યા એકબીજાને પસંદ કરી પંચો રૂબરૂમાં વડીલોની હાજરીમાં બંને પક્ષના માતા પિતાની સંપૂર્ણ મંજૂરીથી વર કન્યા એકબીજાને લગ્ન કરવા પસંદ કરેલ છે। વર અને કન્યા સુખમાં કે દુઃખમાં સાથે હળી મળીને રહેશે
જે ગામ આગેવાનોની હાજરીમાં કબૂલ મંજૂર કરેલ છે. ઉપર મુજબનું લખાણ કાયદેસર ગણાશે, જે બંને પક્ષને બંધન કરતા રહેશે. લગ્નની લાગલેણાની વિગત બેનો હારવાના છે કે કાંઈ લખ્યા ને કાંઈ નહીં આખી પાસે. પીવણ ખર્ચ 1051, મંડપ ખર્ચ 6551, પરચુરણ ખર્ચ 3000, એમ કુલ 10,602 થાય છે. એમાં આજનું પીવણ 1051 એટલે કંઈક મુમરા કે કંઈ જે બી લાવ્યા છે એના 1051 બાદ કરતા 9,551 ચૂકવવાના રહેશે. ઘરેણામાં 20 તોલા ચાંદીમાંથી લેવાનું રહેશે. મંગળસૂત્ર સગવડ મુજબ નાકની જળ સોનાની, કાનની બુટ્ટી સોનાની, લગ્નને લગતા કપડાં તમામ આ રીતનું લખાણ છે. બધાને મંજૂર છે ને? એક જોરમાં બોમલા લે જાણે છે. सृष्टि से भी है बड़ा प्रभु तेरा प्यार, सागर से भी गहरा तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई सागर से भी गहरा तू है महान, आसमानों से भी ऊंचा तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. ગામ તેમજ કપડવણ ગામના આગેવાનોએ દેહ કૃપાણુ સગાને નિમિત્તે દેહ કૃપાણુસર સારી હા દેહ કૃપાણુસર વિચારધારા રાખીને હાલેલુયા દેહ કૃપાણુસર લખાણ કર્યું છે રાજા. અને દેહ કૃપાણુસર આ સમયે દેહ કૃપાણુસર તેઓ હા લેવડ દેવડ કરેલા છે. ત્યારે પ્રભુ રાજા આજે દેહ प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा तू है महान, आसमान से भी ऊंचा. શક્તિમાન પિતા પરમેશ્વર, આ સમયે બંને પરિવારમાં આજે પ્રભુ જે આનંદનો પ્રસંગ તું લાવ્યો છે, ત્યારે આ સમયે આ પરંપરા થતો રહેલો એક આનંદનો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગની અંદર આવેલા તમામ આદરણીય આગેવાનો, પાલકો, સર્વોને
અમે તમારી ઉપસ્થિતિમાં લાવીએ છીએ. વિશેષ સમય પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બ્રિજલ અને એલિસ તેઓ અત્યારે એકબીજાની સાથે કરાર કરીને તેઓ અત્યારે સગાઈમાં જોડાનાર છે. સગાઈ એટલે કે તે જાહેરાત છે. સગાઈ એટલે કે મુખ્ય પાયો છે. એટલે ચાલો અમારા ઉદ્ધાર કરવાવાળા પ્યારા પ્રભુ યીશુના નામથી અમે માગીએ છીએ. યીશુ મસીહ કી સારું, કેમ કે આપણે આનંદના પ્રસંગમાં આવ્યા છીએ અને પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુના ઘણા બધા દાસો અને દાસીઓ, સિનિયર પાળક સાહેબો, આગેવાનો, વડીલો અને સર્વો તમે આવ્યા છો. અમે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને સાથે સાથે સમાજના આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ પણ, નાના મોટા સર્વ ભાઈ બહેનો તમે આવ્યા આ પ્રસંગની અંદર. એટલા માટે આપ સર્વને અમે આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુના દાસ એમના પરિવારે આખા ભારત દેશની અંદર ઘણી મોટી સેવા આપી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને આપ સર્વો એમને પ્રેમ કરીને આવ્યા છો. એના માટે આભાર માનીએ છીએ. અને ખાસ કરીને ખૂબ જ દૂરથી, ભિલાઈથી, છત્તીસગઢથી પ્રભુના દાસ જેઓ સિનિયર પાળક સાહેબ છે અને જેઓ બાઇબલના ટીચર પણ છે અને જેઓની પાસે ઈશ્વરે અદ્ભુત સેવા આપી છે, જેઓ ક્રુસેડો કરે છે, સેમિનારો કરે છે અને પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ કે તેઓ પણ આજે સગાઈની અંદર તેઓ આટલે દૂરથી આવ્યા છે. ફક્ત આ સગાઈ વિધિને માટે તેમનો પણ આપણે આભાર માનીએ છીએ. આવો આપણે પ્રભુના દાસને માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. રેવરન્ડ સ્ટેનલી જોન સાહેબ કે જેઓ આપણી વચમાં છે, જોરદાર તાળીઓ પાડીએ પ્રભુના દાસને માટે. સાથે સાથે જેટલા પણ અહીંયા સિનિયર પાળક સાહેબો છે, બધા જ મંચ પર બિરાજમાન થયેલા પાળક સાહેબો, વડીલો, આગેવાનો માટે હું ચાહીશ ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડીશું, કેમ કે તેઓની ઉપસ્થિતિ આપણા માટે ખૂબ જ આશીર્વાદિત છે. અને સાથે તમે બધા જ આવ્યા, એકબીજા માટે, બધા માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીને આવો આપણે સ્વાગત કરીએ. અને સારું, આ સમયે પ્રભુના દાસ જેઓ વચનની સેવાની સાથે સાથે સગાઈ વિધિમાં પણ આપણને દોરશે. અને હું આભાર માનું છું કે કપલ સેમિનારમાં તેઓ કરંજવેલમાં આવ્યા અને તેઓને ખબર નહીં એટલો પ્રચાર અસરકારક થઈ ગયો કે તરત કેટલાક મહિનાની અંદર, સમયની અંદર જ એમની સગાઈ થઈ ગઈ અને કેટલો આનંદનો દિવસ કહેવાય. સારું, આ સમયે રેવરન્ડ સ્ટેનલી જોન સાહેબ આપણી વચમાં છે, તેઓ આગળ આવશે. તો કેમ નહીં તાળીઓ પાડીને આપણે તેમને બોલાવીએ, જોરદાર તાળીઓ પાડીશું. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से इस दोपहर की बेला में इस स्थान पर दो जवानों के एंगेजमेंट में आने का प्रभु ने अवसर दिया. मेरे लिए ये एंगेजमेंट, ये सगाई की विधि मेरे जीवन में सबसे बड़ी एंगेजमेंट की विधि है. मैं आज तक जितने भी एंगेजमेंट में गया हूँ, 25, 50, 100 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग से ज़्यादा कोई भी एंगेजमेंट में मैंने देखा नहीं. बट मेरे सेवकाई में ये सबसे पहला सगाई है जहाँ पर सारी तैयारी शादी की है पर नाम सगाई का है. खाना, भोजन, सब कुछ, कैमरा वाले, ड्रोन कैमरा वाले, गाड़ी घोड़ा, सारी आपकी साड़ी, गाड़ी, पैंट, सूट, सब शादी की तैयारी है पर नाम सगाई दिया गया. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रभु के धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ उचित समझा कि मैं भी इस सगाई में, इस एंगेजमेंट में आकर शामिल होने पाऊँ. बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्रिसमस के वीक में हैं, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है. पर जब बीते दिनों में पास्टर सिलास का फ़ोन आया और जब उन्होंने कहा कि एलिस भाई का एंगेजमेंट है और आपको एंगेजमेंट की विधि को संपन्न कराना है, तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाया. फिर मैं अपने कुछ कार्यक्रम को कैंसिल करके, कुछ कार्यक्रम को पोस्टपोन करके मैं फिर कल रात में यहाँ पर आना हुआ. प्रभु के नाम की महिमा हो. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. थोड़ा अच्छे से बोलिए ना, हालेलुया. नहीं, मजा नहीं आया. और एक बार अच्छे से बोलिए हालेलुया. या तो आप बहुत थके हुए हैं, या तो आप दुखी हैं इस एंगेजमेंट से, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही. यदि आप सचमुच में आनंदित हैं तो एक बार जोर से बोले हालेलुया.
हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, बहुत ठीक है नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक है। पर मैं सोचता हूँ कि हम चाहे वर पक्ष से आए हो वधु पक्ष से आए हो, खाना आपने खिलाया है ना सबको? खिलाया है बोले भाई। मैं तो इस बात का सबूत हूँ, एलिस भाई के यहाँ का खाना तो कल रात से बनते हुए मैंने देखा है, तो खिलाया है, उस बात का तो सबूत है। लड़की के पापा और आपने खाना खिलाया है, और ऐसा लग नहीं रहा कि खाना खा करके आए। एक बार और आवाज आनी चाहिए, बोलो यीशु मसीह की। यस। अगर कोई आपके आस पड़ोस में अगर वो सो रहा होगा तो दो कारण हो सकते हैं, है ना? जो बैठे हैं उनको बोल रहा हूं, खड़े वाले तो थोड़ा सा तकलीफ है, बेचारे को जगह नहीं मिला। पर अगर कोई आपके आस पड़ोस में अगर सो रहा होगा तो दो कारण होंगे, या तो वो कल रात भोजन बनाने में सहायता और मदद कर रहा होगा, और नहीं तो फिर उसने आज एंगेजमेंट का खाना दबा करके खाया होगा। ये दो कारण से हो सकता है कि आपको नींद आ सकती है, और प्रभु आपको आशीष देने पाए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम आनंदित और क्या होने पाए, मगन होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस एंगेजमेंट की विधि में प्रार्थना करी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन से एलिस ने सोचा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। वो बहुत खुश थे, आनंदित थे, पर कहीं ना कहीं एक कमी और घटी लग रही थी। अब उन्होंने उस फैमिली कॉन्फ्रेंस के बाद लड़की ढूंढना शुरू किया कि उसके पहले से देख रहे थे, मुझे नहीं मालूम। बट एनी हाउ, साल अंत होने से पहले उन्होंने अपनी दौड़ कापड़वान में आकर पूरी करी। कहाँ राजा ढूंढते रहे, कितने चप्पल घिसे, कितने जूते घिसे मुझे नहीं पता, कितने पैसे फोन पे खर्च हुए। हमारे यहाँ कहावत है, छोरी बगल में ढिंडोरा शहर में। प्रभु का धन्यवाद हो नानू भाई के लिए, उनकी प्रिय पत्नी बहन सीता बहन के लिए, और ब्रिजल के पापा और मम्मी भाई याकूब के लिए, और उनकी प्रिय पत्नी बहन संगीता के लिए। आज दोनों परिवार के लिए बड़े आनंद की बात है कि प्रभु आके एक अद्भुत कार्य को आज क्या करने जा रहा है, पूरा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब इस एंगेजमेंट की विधि को या संदेश को लेकर आ रहा हूं, मैं इस समय एलिस के दादाजी नानू भाई के पापा स्वर्गीय बिशप ठाकुर भाई को भी हम याद करते हैं। आज अगर वो हमारे मध्य जीवित रहते तो मैं सोचता हूं कि वो बहुत ही आनंदित और खुश रहते। बट स्टिल आई बिलीव, आज इस कप के बावजूद भी मैं विश्वास करता हूं कि आज स्वर्ग में रहकर, आज स्वर्ग से उनकी निगाहें, उनकी आंखें इस एंगेजमेंट के ऊपर, जब एलिस और ब्रीजल अपने जीवन की शुरुआत इस एंगेजमेंट के द्वारा करते हैं, पूरे परिवार, पूरे कलीसिया और हम तमाम लोगों की आशीषें इस परिवार के साथ क्या है, जुड़ी रहने पाए। मैं एंगेजमेंट से पहले वहां बैठा हुआ था, कई बातें मेरे मन से होकर जा रही थी। मैंने एक जवान भाई को बुला करके बोला कि एक नट बोल्ट की व्यवस्था करिए, एक बोल्ट और एक नट की व्यवस्था करिए। हमारे जवानों ने खूब दौड़ भाग कर कौन से टेबल, कौन सी कुर्सी, किसका निकाल करके लाया पता नहीं, पर लाया जरूर भाई। सो थैंक यू वेरी मच। मैं सोचा था कुछ छोटा सा नट होगा, छोटा सा बोल्ट होगा, तो उन्होंने थोड़ा बड़ा बोल्ट लेकर आया, बड़ा नट लेकर आया। तो दूल्हे महाराज के बाजू में जो जवान बैठे हैं, नीलेश भाई, सुलेमान भाई, सुलेमान भाई, तो बोला सर अगर बोल्ट और नट मजबूत है तो हमारा एलिस कमजोर है क्या?
तो उन्होंने एलिस के हिसाब से बोल्ट और नट लेकर आया। मैं आज की शाम जस्ट वांट टू शो यू एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर बोल्ट बना है, ये बोल्ट है, अगर बोल्ट बना है तो ये याद रखिएगा उस बोल्ट का नट भी खालिस्तान भरिए ना बना ही होगा। ऐसा कोई बोल्ट नहीं है जो बिना नट के हो, और ऐसा कोई नट नहीं है जो बिना बोल्ट के हो। बट कोई भी बोल्ट, कोई भी नट मत फिट करिएगा। कितने जवान समझ रहे? अरे जवान कम से कम हाथ तो बोले यार। तो मेरी जवान बहनें तो बोलिए हाँ। इन दिनों में कुछ लड़के और लड़कियां, हमारे मसीह समाज की लड़के और लड़कियां, कोई भी नट ले रहे, कोई भी बोल्ट ले रहे। आप समझ रहे हैं अगर हंस रहे तो। अगर बोल्ट सही साइज का है तो नट भी सही साइज का होना चाहिए। देखिए मेरे हाथ में जो बोल्ट है और जो नट है एकदम सही साइज के हैं, बराबर इसमें क्या हो रहा है, फिट हो रहा है, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। इस एग्जाम्पल के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं, एक विवाह के लिए, एक एंगेजमेंट के लिए एक सही रिश्ता, सही परिवार और सारी बातें सही क्या है होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज इस दोपहर की बेला में इस एंगेजमेंट में आए हैं, इस सगाई की विधि में आए हैं, हमारे आसपास परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बदलती चली जा रही है। शैतान सबसे ज्यादा अटैक, आक्रमण फैमिली के ऊपर कर रहा है, परिवार के ऊपर कर रहा है। मैंने आपको फैमिली कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातों को बताया था। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। परिवार जितना मजबूत रहेगा, कलीसिया भी उतनी ही क्या है, मजबूत रहेगी। पति और पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत रहेगा, परिवार भी उतना क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। बहुत सी बातें हैं। पास्टर एलिस सेवा में हैं, हर रविवार को वो प्रचार करते हैं, बहुत सी बातें वो जानते होंगे। फिर भी इस दोपहर की बेला में चंद बातें परमेश्वर के वचन से कहना उचित रहेगा, और उसके बाद फिर हम एंगेजमेंट की विधि में हम जाएंगे। मुझे मालूम है आप बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए आप बड़े आदर पूर्वक के साथ इस सगाई की विधि का आप सम्मान करेंगे। और मैं सो प्रभु आशीष देने पाए। आज सुबह जब हम सोकर उठे, बाहर का मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं था। जब भोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए गए तब भी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही थी। थोड़ा सा हमारा एलिस भाई, थोड़ा सा उनके पापा और मम्मी थोड़ा सा टेंस थे कि कहीं बारिश ना हो। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, आज एलिस और ब्रीजल के एंगेजमेंट के लिए आसमान भी खुश है मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आसमान ने भी अपने आशीषों की वर्षा थोड़ी सी बरसा कर वो भी बेचारा चुप हो गया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना आप जहां कहीं बैठे हैं, दोनों हाथ को उठाकर अपनी आंखों को बंद करते हुए, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से। अगर आता है सब मिलकर गाएंगे, योग्यता
जानी चाहिए। योग्यता से थैंक यू लॉर्ड। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद सारे तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि। और एक बार, कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति। पढ़कर इस पद से चंद बातों को आपके मध्य में मैं रखना चाहूंगा। कोई भी घबराइएगा नहीं, समय पर ही मैं समाप्त करूंगा। पर कौन से समय पर समाप्त करूंगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर मैं समय पर ही समाप्त करूंगा, ठीक है? हाँ। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप बाइबल लेकर के आए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है पास्टर साहब आज तो साड़ी संभालते रहेंगे कि बाइबल संभालेंगे। आज तो थोड़ा सा बाल सेटिंग करना था, इसलिए हम बाइबल लाना भूल गए। पर अच्छा रहेगा कि लेकर आते, बट एनी हाउ कोई बात नहीं। आज आपके लिए एलिस और ब्रीजल के एंगेजमेंट के लिए छूट है, बट याद रखना अगले एंगेजमेंट से बाइबल जरूर लेकर के जाना, ठीक है? सो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। अपना मुंह बंद रखना और कान खुला रखना, ठीक है? यस। यहां पर यूं लिखा है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। 20वां पद, यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम जैसा जानते हैं कि यह एक सगाई है, एंगेजमेंट है, और दो परिवार आज एक एग्रीमेंट किए हैं, एक सहमति की है। हम जब सब आए यहां पर सामने दोनों पक्ष के ब्रदर्स मिलकर, जो उनके बड़े पंचायत के गण हैं और जो भी बड़े लोग हैं, बैठकर उन्होंने इस बात को तय किया, है ना? और आज एक एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ, या उसे बोलते हैं समझौता। इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसे एंगेजमेंट भी बोलते हैं और इसे बेट्रोवल भी बोलते हैं। बेट्रोवल, बेट्रोल का मतलब होता है मैरिज एग्रीमेंट, विवाह का अनुबंध। कितने लोग के पास मोबाइल फोन है? अरे पास्टर साहब क्या सवाल पूछा आपने। ओके, आपको एक शब्द बताना चाहता हूं। हम कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब किसी का फोन नहीं लगता है, तो हम लोग बोलते हैं फोन क्या आ रहा है? एंगेज आ रहा है। एंगेज, एंगेज से निकल के आया है एंगेजमेंट। एंगेज मतलब, आपको मालूम है फोन क्यों एंगेज है? मतलब सामने वाला भाई किसी से बातें कर रहा है, इसलिए उसका फोन आपके पास क्या आ रहा है? एंगेज आ रहा है। आज एंगेजमेंट है, एंगेज। आज से एलिस ब्रीजल का होने जा रहा है और आज से ब्रीजल एलिस की होने जा रही है। कल तक एलिस ने किसी किसी को देखा होगा,
कल तक ब्रीजल ने किसी किसी को देखा होगा कि शायद ये लड़का मेरे लाइफ का पार्टनर अच्छा रहेगा, शायद ये लड़की मेरे लाइफ की पार्टनर अच्छी रहेगी। अब कल तक दोनों ने किसी को भी देखा हो वो तो छूट है, पर आज के बाद दोनों एंगेज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, विवाह के सगाई के बंधन में जुड़ रहे हैं। मैंने नीचे बैठे बैठे सुलेमान से पूछा, अरे ये दोनों कुर्सियां यहां रखे थे, ज्यादा अच्छा लग रहा था, ये कुर्सियों के ये ऐसा क्यों चेंज कर दिया? तो सुलेमान बोलता है, सर दोनों को पास पास रख रहे, आज से दोनों एक दूसरे को देखेंगे। ओ सो कई बातें मुझे मालूम नहीं थी, सुलेमान बता रहा था मुझे। तो एलिस भाई ने बोला कि सर आज वो बता रहा है, वो भी अपनी भी तैयारी कर रहा है। सो आज से एंगेज हो गए, दिस इज एंगेजमेंट। अब एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में अनुबंध हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ आने वाले दिनों में हम विवाह के बंधन में क्या है बंधेंगे। मेरे प्यारे, एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में या फिर दुनिया में कई फंक्शन होते हैं, कई समारोह होते हैं, कई संसार में कई समारोह होते हैं, बट बाइबल हर एक कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं देती। हर एक कई प्रोग्राम होते हैं परिवार में, बाइबल उसको सहमति नहीं देती उस कार्यक्रम की। हमारे जीवनों में, आप लोग मेरे साथ हैं, हमारे जीवनों में 75% ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका कोई सर नहीं, जिसका कोई पैर नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। बट एंगेजमेंट इस फंक्शन, बिब्लिकली फंक्शन, बाइबल आधारित है ये सगाई, ये एंगेजमेंट। और विवाह से पहले, एंगेजमेंट विवाह के बाद नहीं होता, कब होता है? विवाह से पहले, शादी से पहले। ये एग्रीमेंट है जिसको हम एंगेजमेंट क्या है बोलते हैं। और इस एंगेजमेंट को बाइबल क्या देती है मालूम है? प्राथमिकता देती है, प्रायोरिटी देती है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मरियम और यूसुफ के एंगेजमेंट को, मंगनी को भी हम क्या करते हैं, बाइबल में हम क्या हैं देखते हैं। हेलो, सो इट्स बिब्लिकल, ये बाइबल आधारित है। यीशु के जन्म से पहले उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ क्या है, हो गई है। ये एक तैयारी के लिए एंगेजमेंट है। आज के बाद एलिस और ब्रीजल के लिए एक समय रहेगा। आज के बाद दोनों फोन नंबर लेकर एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। मेरी शादी मोबाइल आने से पहले हो गई थी, पर उस समय एसटीडी बूथ का जमाना था। मैं भी रात रात में लाइन पे खड़ा रहता था एंगेजमेंट के बाद। और उस समय वो लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल फोन हुआ नहीं करता था। एसटीडी बूथ से बात करना पड़ता था, वहां बिल भी चलता रहता था और दिल भी चलता रहता था। तो बड़ा तकलीफ होता था, उधर दिल और इधर बिल। इधर दिल में बड़ी इच्छा रहती थी बात करने की, पर बिल भी देखना पड़ता था, पर पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता था, अरे साहब हम भी लाइन में खड़े, हमको भी बात करना। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप से पहले मेरी शादी हो गई। पर जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के जमाने में हैं, आप धन्य भी हैं, बट एट द सेम टाइम आपको सावधान होने की भी बहुत जरूरत है।
ईमेल में आपको फीमेल मिलेगी, बट खबरदार, ईमेल में आपको फीमेल मिलेगी, बट आपको सावधान होने की बहुत जरूरत है। सो आज हम सब मिलकर एलिस और ब्रीजल को लर्निंग लाइसेंस देने जा रहे हैं। आपको मालूम है लाइसेंस पाने से पहले कौन सा लाइसेंस मिलता है? लर्निंग लाइसेंस। और लर्निंग लाइसेंस 3 महीने का या 6 महीने का ही होता है, उससे ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहती उसकी। सो आज एलिस और ब्रीजल एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। आज के बाद अपने विचारों में एक परिवर्तन आना चाहिए। अगर किसी को यूएसए जाना है, अमेरिका जाना है, 20 घंटे की यात्रा है, हवाई यात्रा 20 घंटे की यात्रा है। 20 घंटे की यात्रा करने के लिए हवाई जहाज अमेरिका में जाने के लिए कई महीनों की तैयारी करनी पड़ती है उस 20 घंटे की यात्रा के लिए। आपके पास पैसा है, टिकट खरीद कर आप नहीं बैठ सकते। अगर 20 घंटों की यात्रा के लिए कई महीनों की तैयारी करनी पड़ती है अगर उस यात्रा के लिए, तो फिर यह तो एक विवाह की, जीवन की यात्रा है। इसके लिए एलिस और ब्रीजल को कितनी तैयारी करनी पड़ेगी आप सोच लीजिए। पता नहीं एलिस क्या सोच रहा है, पता नहीं ब्रीजल क्या सोच रही है, पर कुछ तो सोच रहे हैं। एक बार ऐसी विवाह में मैं गया, लड़का बहुत लंबा था, लड़की बहुत शॉर्ट सी थी। देखने से अमिताभ बच्चन और जया बादुड़ी की जोड़ी लग रही थी। सो मैंने मजाक में पूछ लिया, अरे कैसे तुम इतना लंबा है और लड़की कैसे इतनी छोटी सी ढूंढ करके लाया? तो वो दूल्हा महाराज बोलने लगा, पास्टर साहब, समस्या जितनी छोटी हो उतनी ही अच्छी है। समस्या जितनी छोटी हो उतना अच्छी है। आज पक्का घर जाकर हर एक पति अपनी अपनी को आज बाजू में खड़ा करा के चेक कराएंगे तो बड़ी है कि छोटी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पत्नी हमारे विवाह के लिए समस्या नहीं है। जब घर की बात आती है तो लिखा है हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। विवाह की योजना, एंगेजमेंट की योजना परमेश्वर ने तय करी है। और याद रखिए, एक विवाह के लिए, एक उचित और बिब्लिकल विवाह के लिए एक पुरुष का और एक स्त्री का होना बहुत क्या है? जरूरी है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर स्थितियां, परिस्थितियां बहुत तेजी से क्या हो रही है? बदल रही है। पढ़े गए भाग में लिखा हुआ है कि मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की क्या करूंगा? प्रतिज्ञा करूंगा। एक शब्द आया है फॉरएवर, सदा के लिए। आज एक एग्रीमेंट हुआ एलिस भाई के परिवार वालों के बीच में और ब्रीजल बहन के परिवार वालों के बीच में कि निकट भविष्य में ये दोनों विवाह के बंधन में बंधेंगे। और कब तक के लिए बंधेंगे है याकूब भाई? जीवन भर के लिए, सदा के लिए। थोड़ा पति लोग और पत्नी लोग मेरी तरफ देखिएगा। एक शब्द वहां पर बाइबल में आया है, मैं सदा के लिए। गुजराती में क्या शब्द आया? सदा ने माटे। विवाह कब के लिए है भैया? थोड़ा बोलिए ना। सदा ने माटे। पति कब तक के लिए है? सदा ने माटे। पत्नी कब तक के लिए है? सदा ने माटे। ये मेरे और आपके जमाने में आया है। OLX में बेच दे, अच्छा नहीं लगा OLX में बेच दे।
अच्छा नहीं लगा अमेजॉन से वापस कर दे, स्नैपडील है भैया। एंगेजमेंट और मैरिज कोई OLX में खरीदने और बेचने वाली चीज नहीं है कि आज आपको पसंद नहीं आए तो आप उसको क्या कर दे, बेच दे। जितने विवाहित लोग यहां पर उपस्थित हैं, जितने शादीशुदा लोग यहां पर उपस्थित हैं, आज एलिस और ब्रीजल के एंगेजमेंट के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी पत्नी, आपका पति आपके वैवाहिक जीवन के लिए वो सदा के लिए क्या किए गए हैं, जोड़े गए मेरे प्यारों। इसलिए बाइबल में लिखा है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई भी मनुष्य क्या ना करे, अलग ना करे। यह एक बंधन है, यह एक एग्रीमेंट है जो आज एलिस के पक्ष वालों ने और ब्रीजल के पक्ष वालों ने क्या है, किया है। और यह प्रतिज्ञा कैसी की गई है मालूम है? यहां पर लिखा है, और यह प्रतिज्ञा धर्म, न्याय, करुणा और दया के साथ। ये चार चीजें हर एक एंगेजमेंट में और हर एक मैरिज में होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। मेरी प्रार्थना है आज की इस दोपहर की बेला में, जब एलिस और ब्रीजल दोनों एक दूसरे को अपना एग्रीमेंट दिया है कि निकट भविष्य में सदा के लिए एलिस ब्रीजल का पति बनकर और निकट भविष्य में ब्रीजल सदा के लिए एलिस की पत्नी बनकर रहेंगे। और हमारी प्रार्थना हो जाए कि परमेश्वर आज इनके एंगेजमेंट की शुरुआत के बाद, आज से या बल्कि अभी से, परमेश्वर उनके जीवन में, उनके हर एक डिसीजन में, निर्णय लेने में प्रभु उनकी क्या करने पाए, सहायता करने पाए। साथ ही साथ दोनों परिवारों को, नानू भाई के परिवारों को, याकूब भाई के परिवार को भी प्रभु क्या है, आशीष देने पाए। इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा मैं अपने संदेश को यहां पर विराम देना चाहूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने पाए। रेवरेंड RM पटेल साहेब प्रार्थना कराओ। પ્રાર્થના કરીએ એ કે સંસારિક જીવન માટે કુટુંબિક પાયો આજે નાખી રહ્યા છે, ત્યારે હે પરમેશ્વર પિતા, આ કાર્ય પર તમારી કૃપા અમે ચાહીએ છીએ। પ્રભુજી, તમારો હાથ લંબાવીને તેઓને તમે આશીર્વાદિત કરો। પરમેશ્વર, એવું પરિવાર એક બને કે અન્ય પરિવારોને માટે એક આદર્શ નમૂનો બને। પ્રભુજી, બાકી જે સગાઈનું કાર્ય છે, વિધિ છે, એમાં પણ પ્રભુ તમે हम मदद करो। प्रार्थना प्रभु यीशु ना नाम मांगिए छे, आमीन। ध्यान से सुने, चंद मिनट में इस विधि को भी हम समाप्त करेंगे। हम यहां जमा हुए हैं कि इस मंगनी में शामिल होकर इसके गवाह बने। एलिस तथा ब्रीजल ने यह निश्चय किया है कि निकट भविष्य में ये दोनों आपस में विवाह के रिश्ते में जोड़े जाएं। यह एंगेजमेंट, यह मंगनी की रस्म कानूनी बंदिश नहीं, पर यह एक आपस का वायदा है। और इस प्रतिज्ञा का प्रमाण सामान का आदान प्रदान करना है। यह प्रतिज्ञा कलीसिया एवं प्रभु की उपस्थिति में करनी है, जो पक्की मोहर जानी जाती है। माफ करिएगा, मैं पास्टर नहीं बोलूंगा, मैं एलिस बोलूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी हम एंगेजमेंट की विधि में हैं। मैं अब आप दोनों से पूछता हूं कि आप दोनों ने पक्का इरादा कर लिया है कि आप दोनों आपस में आने वाले समय में विवाह में जोड़े जाएं? दोनों मिलकर उत्तर दीजिएगा, हां देना, नहीं तो ना देना। वैसे तो हां बोल दिया है नीचे भी आप लोगों ने, ठीक है? एलिस, क्या आपने इस बात का पक्का इरादा कर चुके हो कि ब्रीजल से आने वाले दिनों में विवाह करोगे? इस बात में आप पूर्ण सहमत हो? हाँ, मैं सहमत हूँ। थैंक यू भाई एलिस। भाई एलिस ने अपनी सहमति को
आज परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के दासों के उपस्थिति में इस बात का उन्होंने अंगीकार किया है कि आने वाले भविष्य में वे ब्रीजल से अपना विवाह करेंगे। मैं इस समय ब्रीजल से पूछना चाहूंगा, ब्रीजल, क्या आप पक्का इरादा कर चुकी हो कि एलिस से आने वाले दिनों में विवाह में जोड़े जाएं? इस बात की प्रतिज्ञा करती हो और क्या इस बात से पूर्ण सहमत हो? आवाज बड़ी धीमी सी है, कम सी है। आशा करता हूं विवाह के बाद भी ऐसी ही रहे। आप लोगों ने आमीन नहीं बोला? अच्छा ठीक है, ओके। आप देते हुए पकड़ते, मेरे पीछे बोलना। मैं यह सब वस्तु तुझे देते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूं, इधर देखते बोलो ना, मेरे को थोड़ी ना दे रहे तुम, और वैसे भी साड़ी तो मैं पहनता नहीं। ओके ठीक है, यस इट्स अ प्रॉमिस है ना। यस ब्रीजल उधर तो दे ना, तुमको साड़ी दे रहा, पहला गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारे एंगेजमेंट का पहला गिफ्ट है ना। ओके, अगर एंगेजमेंट में ही तुमको गिफ्ट दे रहा है तो जिंदगी भर तुमको गिफ्ट देता रहेगा। ठीक है, यस फिर से एक बार। और क्या क्या लाया है? रिंग है, मिठाई है। अरे मीठा भी है भाई, हम तो देखा नहीं। इसको अभी वापस लेंगे फिर से। ये कौन सा? ये सब वस्तुएं तुझे देते हुए प्रतिज्ञा करता हूं निकट भविष्य में तुझसे ही विवाह करूंगा। आमीन। सिस्टर ब्रिंजल के बीच में जो एंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ है परमेश्वर पिता और जो रिंग एक दूसरे को आदान प्रदान करने वाले परमेश्वर, तेरा अनुग्रह में ये जोड़ी प्रभु अंत तक प्रार्थना करता और रिंग को आशीष के लिए धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ। दोनों एक दूसरे को पहना रहे हैं। 3 रिंग होता है। विकास भाई है ना, विकास भाई जो मित्र हैं उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। जिंदगी में 3 रिंग होते हैं, एक एंगेजमेंट रिंग, दूसरा वेडिंग रिंग और तीसरा होता है सफरिंग। 2 रिंग तो दिखता है पर तीसरा रिंग नहीं दिखता है। सो इस समय एलिस ब्रीजल को एंगेजमेंट रिंग के द्वारा आशीषित करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं सब ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देने का। अब समय है, ब्रीजल एंगेजमेंट रिंग को पहना रही है और मेरे पीछे बोलेगी, रिंग को पहनाते हुए बोलेगी, मैं यह तुझे भेंट देती हूं और वायदा करती हूं आने वाले समय में करूंगी। आमीन आमीन। अब आज एंगेजमेंट के बाद कल एलिस ब्रीजल को क्या खिलाएगा हमें नहीं पता, और ब्रीजल एंगेजमेंट के बाद एलिस को क्या खिलाएगी हमें पता नहीं, पर आज तो कम से कम पता है कि दोनों एक दूसरे को पेड़ा खिलाएंगे। ओके गुड। अब आपकी बारी। थोड़ा जोरदार ताली बजाइए ना। हाँ, दोनों कंजूस नहीं है, दोनों ने पूरा पूरा पेड़ा लिया है। सो इनके एंगेजमेंट के बाद भी अगर मैं आऊंगा विवाह के बाद तो ब्रीजल मुझे पूरा ही खाना खिलाएगी। चलो ये तो आशा है। इस समय दोनों एक दूसरे को माला के द्वारा गार्लैंड करेंगे। बड़ा ही सुंदर खूबसूरत माला बनकर आया, वेरी नाइस। गार्लैंड करता है ब्रीजल को। मैं चाहता हूं दोनों हाथों को जोरदार ताली बजाते हुए
प्रभु का धन्यवाद। पर ब्रीजल के लिए झुक गया भाई। प्रभु आशीष देने पाए। स्वर्ग पिता हम आते हैं, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जमाए की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम जमाए की है, शर्म से सिर झुक जाते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को दोनों हाथ लेफ्ट का लेफ्ट राइट का जैसे मैं जब एलिस भाई के साथ काम करने के लिए चर्च के वडील सीनियर लोग भी हमारे मध्य में हैं, दोनों चर्च यहां पर उपस्थित है। आइए हम प्रार्थना करने पाए। हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम आपके कदमों के पास धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तेरी उपस्थिति में, तेरे दासों और दासियों और लोगों की उपस्थिति में, दोनों ने एक दूसरे को प्रभु जी अपना एग्रीमेंट दिया है कि निकट भविष्य में वे विवाह में शामिल होंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को तू बड़ी आशीष दे, बरकत दे प्यारे प्रभु। आज से प्रभु तेरी उपस्थिति भाई एलिस के ऊपर और तेरी उपस्थिति बहन ब्रीजल के ऊपर बनी रहने पाए प्रभु। आज से दोनों के विचारों में एक परिवर्तन आने पाए, बातों में परिवर्तन आने पाए, व्यवहारों में परिवर्तन आने पाए और केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। जो वचन हमने पढ़ा, मैं आज से तुझे प्रतिज्ञा करता हूं, सदा के लिए तुझे मैं अपनी स्त्री बनाऊंगा प्रभु। ये एंगेजमेंट विवाह में बदलकर सदा के लिए तुझको महिमा देने वाला होने पाए। ये कपल, ये जोड़ा बहुतों के लिए एक एग्जाम्पल बनने पाए। सारी महिमा आपको मिलने पाए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, हम विश्वास करने वाले सब मिलकर बोलने पाए आमीन आमीन। आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દિવસની રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમને માફ કરો, અમને શિક્ષણ આપો, અમને દુષ્ટ કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर, भाई नानू भाई के परिवार के ऊपर, भाई याकूब भाई के परिवार के ऊपर और विशेष रीति से भाई एलिस और ब्रीजल के इस एंगेजमेंट से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। और एक बार हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए आमीन। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। खड़े हो जाएं। मैं आगे का समय प्रभु के दास पास्टर सिलास भाई के हाथ में सौंपना चाहूंगा। जो भी सूचनाएं होंगे वो आपको देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर एलिस का, उनके परिवार का, जिन्होंने अवसर दिया कि मैं इस एंगेजमेंट की विधि को संपन्न करा सकूं। आप सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो बड़े आदर के साथ प्रार्थना पूर्वक यहाँ पर रहे। प्रभु के आने में देरी हुई, आपसे मुलाकात होगी। इन एडवांस में आपको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहता हूं। प्रभु के आने में देरी हुई, जरूर से हम आने वाले दिनों में मिलने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। थैंक यू वेरी मच। सगाई प्रसंगे प्रभुजी तम सर्वने उपस्थित कर्या माटे आभार। प्रभु અમારા સાહેબ દ્વારા સુંદર વચનો પ્રભુજી દરેક વ્યક્તિએ સાંભળ્યા, ખાસ કરીને આ નવયુગલે સાંભળ્યા છે। આવનાર દિવસોની અંદર તે જ પ્રમાણે તેઓ આગળ વધે એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। એમના માનની અંદર પ્રભુજી જે પ્રભુજી ચેવડો અને મમરા છે તેમને તમે આશીર્વાદિત કરો, દરેક ખાય તમારું મહિમા કરે એવું થવા દો। ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ આમેન। સર્વ સમયે સગાવિધિ પૂર્ણ થાય છે। આભાર માનીએ છીએ। સાથે સામાજિક આગેવાનો પણ અહીં છે, એમના માટે પણ અમે આભાર માનીએ છીએ મંડળી વતી।
અને આવેલા દરેક ભાઈ બહેનોનો પણ અમે આવકારની સાથે દરેકનો આભાર માનીએ. સારું સ્થાનિકે મંદિરના જુવાનોને વિનંતી કે તમે ઝડપથી મમરાની વહેંચણી તમે કરશો. ત્યાં સુધી કોઈ ઉઠાઉઠ કરવાનું નથી.